श्री गणेश मंगलम श्री गणनायक मंगलम श्री गणेश मंगलम श्री गणनायक मंगलम श्री गणेश मंगलम श्री गणनायक मंगलम मंगलम स्वयंभू सिद्धि विनायक मंगलम मंगलम स्वयंभू सिद्धि विनायक मंगलम सिद्धि विनायक मंगलम Welcome to the Bhajnavali broadcast, directed and hosted by Sri Gyan Rajhans. Bhajnavali is a spiritual broadcast consisting of English discourses, Hindi pravachan, and melodious bhajans. भजनावली के प्रसारण में आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप अंग्रेजी और हिंदी प्रवचनों और मधुर भजनों सुनते हैं। धन्यवाद। Now, here is your host, Sri Gyan Rajhans. Thank you, Shalini. Dear worldwide devotees of Bhajnavali, this is our colorful festival, Holi, in Canada. And lest I forget, let me wish you and yours happy Holi. Let me tell you what am I going to talk about today in this broadcast. In English, I will tell you why celebrate Holi, including the legend of Prahlad and Krishna connection, and in Hindi, I will tell you the spiritual significance of the story of Holika and Prahlad that you would not find on any other website or in any other book for that matter. तो भजनावली के विश्वव्यापी भक्तों, हमारे रंगारंग उत्सव होली का दिन, अतएव होली मुबारक की शुभेच्छा के साथ यह भी बताता चलूं कि आज आप अंग्रेजी और हिंदी में होली संबंधी अनेकों पौराणिक एवं आध्यात्मिक चर्चाएं सुनेंगे। बिना विलंब प्रथम प्रस्तुत है अपने इष्ट श्री गणेश की वंदना, जिसके आशीर्वाद के बिना मैं गत वर्षों से भजनावली प्रस्तुत नहीं कर पाता। इस वंदना के तुरंत पश्चात शेष अंग्रेजी और हिंदी चर्चाएं हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। You are listening to the only non-commercial Vedic religion webcast. आप सुन रहे हैं वैदिक धर्म का एकमात्र विज्ञापन रहित प्रसारण। Now here is Shalini telling you why celebrate Holi. Why celebrate Holi? What you need to know by Sri Gyan Rajhans as published in Hinduism.about.com. Holi, or Phagwa, is the most colorful festival celebrated by followers of the Vedic religion. It is celebrated as the harvest festival as well as welcome festival for the spring season in India. What is Phagwa? Phagwa is derived from the name of the Hindu month Falgun, because it is on the full moon in the month of Falgun that Holi is celebrated. The month of Falgun ushers in spring in India when seeds sprout, flowers bloom, and the country rises from winter slumber. The meaning of Holi. Holi comes from the word hola, meaning to offer oblation or prayer to the Almighty as thanksgiving for a good harvest. Holi is celebrated every year to remind people that those who love God shall be saved and those who torture the devotee of God shall be reduced to ashes, like the mythical character Holika.
The legend of Holika. Holi is also associated with the Puranic story of Holika, the sister of demon king Hiranyakashipu. The demon king punished his son Prahlad in a variety of ways to denounce Lord Narayana. He failed in all his attempts. Finally, he asked his sister Holika to take Prahlad in her lap and enter a blazing fire. Holika had a boon to remain unburned even inside fire. Holika did her brother's bidding. However, Holika's boon ended by this act of supreme sin against the Lord's devotee and was burned to ashes. But Prahlad came out unharmed. The Krishna connection. Holi is also associated with the divine dance known as Ras Leela, staged by Lord Krishna for the benefit of his devotees of Vrindavan, commonly known as gopis. The colors of unity and brotherhood. Whatever the origin of Holi or Phagwa, it was traditionally been celebrated in high spirit without any distinction of caste, creed, color, race, status, or sex. It is one occasion when sprinkling colored powder, gulal, or colored water on each other breaks all barriers of discrimination so that everyone looks the same and universal brotherhood is reaffirmed. This is the end of the article, Why Celebrate Holi by Sri Gyan Rajhans in Hinduism.about.com. थैंक यू शालिनी. होलिकोत्सव का गूढ़ रहस्य तनिक ध्यान से सुनिएगा. होलिकोत्सव वस्तुतः काम दहनोत्सव है, क्योंकि इसी दिन भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया था. यह जो कामना को नष्ट करना है, इस दृष्टि को लेकर ही होलिकोत्सव मनाना चाहिए. होलिका के महोत्सव का प्रधान उद्देश्य यह है कि हम काम पर विजय पालें. असली दृष्टि यह है, और इसी दृष्टि से कई जगह पर लोग कुछ अश्लील कथनोपकथन भी करते हैं, वह वस्तुतः काम का ही प्रतीक है. उन सब को जलाना, नष्ट करना ही होलिकोत्सव का उद्देश्य है. होलिकोत्सव के अंदर मनुष्य होला को जलाता है. होली किसको कहते हैं? होला किसको कहते हैं? गेहूं या चने आदि की जो नई नई बाल आती है, उसे होला कहते हैं. जिसमें यह होला जलाया जाए या भूना जाए और उसका प्रसाद दिया जाए, उसे होलिकोत्सव कहते हैं. बृहन्नारदीय पुराण में बताया गया है कि फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन होलिका का पूजन होता है. सब प्रकार की लकड़ियों को उसमें एकत्रित किया जाता है, और गांव में तो अगर आपको याद होगा, ऊधमबाजी में लोग घर के दरवाजे यहां तक कि मौका मिले तो छप्पर के बांस भी ले जाते हैं. सब प्रकार की लकड़ियों को, सब प्रकार के घास फूस इत्यादि चीजों को इकट्ठा करो और उसके बाद उसे जलाओ. यह उत्सव फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, जैसा कि मैंने पहले कहा. फाल्गुन माने, देखिए, प्रत्येक मास का जो हमने नाम हिंदी में रखा है, उसका आध्यात्मिक अर्थ है. और यह मैंने आपको गत कई वर्षों में बताया है कि श्रावण क्यों कहा जाता है, भाद्र क्यों कहा जाता है, माघ क्यों कहा जाता है, इत्यादि. तो फाल्गुन की बात चल रही है, तो फाल्गुन माने फाल्गु. फाल्गु अर्थात जिसने संसार को व्यर्थ समझ लिया है, वही फाल्गुन मास में स्थित है. संसार को व्यर्थ समझ लिया, इसी के प्रतीक रूप में जो कुछ भी कहीं भी जलाने लायक है, वह सब जलाया जाए. शास्त्र जब कहता है कि सब प्रकार की लकड़ियों को जलाओ, तो शास्त्र का तात्पर्य यह है, श्रोताओं, कि जो कुछ भी जलाने योग्य पदार्थ है, उसको जला डालो. अशुभ कामनाएं, अशुभ कर्म,
आदि सभी जलाने योग्य पदार्थ हैं। और अंततो गत्वा तो काम दहन होने के कारण सब प्रकार की कामनाओं को जलाना है। देखिए, आपके जीवन में बेचैनी यदि है तो वह इसलिए है कि आपने अपनी कामनाओं से मोह रखा है। लोगों ने इसका मोटा तत्व ले लिया कि दूसरों की लकड़ियों को ले लेकर जलाओ। वहां भी तात्पर्य क्या है? स्वयं अपनी कामनाओं का दहन करो और दूसरों की भी कामनाओं को जलाने के लिए मदद करो। फाल्गुन की पूर्णिमा के प्रतीक रूप में जब संसार को व्यर्थ समझोगे, संसार को असत्य समझोगे, तभी इस प्रकार से अपनी कामनाओं को, अशुभ कर्म और अशुभ वासनाओं को जला पाओगे, अन्यथा नहीं। फिर उसके बाद आहुति दी जाती। आहुति का मंत्र सब जानते ही हैं। यह मंत्र स्पष्ट कहता है कि इस महोत्सव का उद्देश्य यह है कि हमारे अंदर जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं उनका हनन करना है। आज जो बाहर से राक्षसी प्रवृत्तियां दिखाई जाती हैं, इनके पीछे एक मानसिक अर्थात मनोवैज्ञानिक रहस्य। अपने मन में बहुत सी राक्षसी दुर्भावनाएं छिपी बैठी रहती हैं। जब तक पहले अवसर लाकर उनको बाहर प्रकट न किया जाए, तब तक उनको खत्म कैसे करोगे? यह जो भावनाएं प्रकट करना है, उसकी दृष्टि केवल यही है कि उस दिन अपने भाव चाहे गंदे से गंदे हों, तो भी उसको बिना किसी अवरोध के प्रकट कर दें। इससे क्या होगा? इसका नतीजा होगा कि हमको स्वयं पता लग जाएगा कि हमारे अंदर कितनी गंदगी है। देखिए, मनुष्य का जो मन है ना, उसकी आदत झाड़ू लगाकर धूल को गलीचे के नीचे करने की तरह है। कभी किसी दिन यदि उस गलीचे को उठाएंगे, आपने अपने घर में भी इसका अनुभव किया होगा, जिस दिन आपने उस रग को उठाया तो आप उस रग के नीचे, उस गलीचे के नीचे से बाल, सेफ्टी पेन, पेन्स आदि कई चीजें निकलती हुई पाएंगे। गलीचा हटाने पर उसकी सफाई हो जाती है ना? इसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव है कि जितनी अपनी दुर्भावनाएं हैं उनको जलाता नहीं है, अपने मन के नीचे दबा कर रखता है। गलीचे के नीचे जिस तरह गंदगी रहती है, नतीजा यह होता है कि जब मनुष्य कभी भी असावधान हो जाता है, तब उसका यह भाव प्रकट हो जाता है। आप कई बार देखेंगे कि जो आदमी बड़ा शांत रहता है, उसने यदि कभी शराब पी ली या उसको कभी गुस्सा आ गया, तो ऐसा बोलता है कि आप सोचने लगते हैं, अरे यह ऐसी बात भी बोल सकता है, विश्वास नहीं हो सकता। कारण यह है कि वे सब दुर्भावनाएं उसने दबा कर रखी थी और सावधानी से प्रकट हो गई। होलिकोत्सव में उन दुर्भावनाओं को अपने सहयोगी, प्रेमी, मित्र, रिश्तेदारों के सामने प्रकट कर दें। सर्वथा असावधान होकर मन आवेशो करें, चाहे नंगे होकर नाचें। इसके द्वारा हमको भी पता लग जाता है कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं और दूसरे सहयोगी, मित्र और रिश्तेदारों को भी पता लग जाता है कि हमारी क्या स्थिति। अब जहां पर सत्संगी होंगे, वे फिर एक दूसरे की मदद करेंगे कि तुम्हारी अमुक कमजोरी हमने देखी, तुमने इसे प्रकट की, अब इससे तुम दूर रहो, हम तुम्हें इसे दूर करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। तो आप भी समझेंगे कि बात ठीक है। अब इस चीज का दुरुपयोग यह हो रहा है कि वे प्रकट तो जानबूझकर करते हैं,
लेकिन उसको बुराई समझकर नहीं, और उसे दूर करने के लिए कोई प्रयत्न भी आगे नहीं करते। अतः आहुति के मंत्र के द्वारा यह प्रार्थना की जाती है कि मेरे ये सारी राक्षसी प्रवृत्तियां नष्ट हों। इस प्रकार श्रोताओं, मेरे जीवन का अनुभव यह है कि जब हम अपने दुर्भाव को, अपने बुरे स्वभाव को अपने सहयोगियों या मित्रों या परिवार के सदस्यों के सामने प्रकट कर देते हैं, तो हम उस बुराई से भविष्य में बच जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके निकट के लोगों को आपकी बुराई का ज्ञान है। तो भविष्य में यदि आप किसी और भाव से कोई काम करेंगे तो आपको पता है कि लोग जानते हैं कि आप क्या हैं। तो इस कारण आप बुरे काम करने से बच जाएंगे। हमारे ऋषियों मुनियों ने हमसे होली के दिन यही प्रत्याशा की है, यही आशा की है, और होला को जलाने का यही आध्यात्मिक रहस्य। तनिक प्रहलाद और होलिका की कहानी पर भी दृष्टि डालें और गूढ़ रहस्य को समझें। यह वैष्णवी शक्ति है, भगवान विष्णु की शक्ति है, जो कभी अपने भक्त को नष्ट नहीं होने देती। सर्वव्यापक पर ब्रह्म परमात्मा की शक्ति से ही मनुष्य सदैव बुराइयों से भी बच सकता है और अनिष्ट से भी बच सकता है। प्रहलाद की कहानी में तात्पर्य यह है कि प्रहलाद की रक्षा वैष्णवी शक्ति ने की, जिसका नतीजा यह हुआ कि प्रहलाद को जलाने के लिए बैठी हुई होलिका तो जल गई, प्रहलाद बच गया। आप लोग सब कथा जानते ही हैं कि होलिका कभी जलने वाली नहीं थी। वह भी उसी चीज को बताता है कि जीव जब वैष्णवी शक्ति का सहारा ले लेता है तो कभी नष्ट नहीं होने पाता। यह कामना की शक्ति अविद्या की शक्ति है। वैसे देखिए तो कामना कभी नष्ट नहीं हो सकती। इसे भी वरदान है होलिका की तरह कि कामना नष्ट हो ही नहीं सकती। इस वरदान का कारण अर्थात कामना के नष्ट न होने का कारण यह है कि कामना नष्ट हो जाए, यह प्रार्थना भी एक कामना ही है। फिर वह नष्ट कैसे होगी? इसलिए कहा गया कि होलिका को वरदान था कि वह आग में कभी नहीं जलेगी कामना की तरह। लेकिन वैष्णवी शक्ति का सहारा लिए हुए जीव रूप प्रहलाद के लिए यह कामना भी नष्ट हो जाती है और जीव बच जाता है। एक बार पुनः आपको प्रहलाद का शाब्दिक अर्थ बताऊं, जो मैंने बार बार आपको होली के समय बताया है। ह्लाद का मतलब होता है आनंद, इसलिए प्रकर्षेण ह्लाद से प्रहलाद हुआ। अत्यधिक आनंदमय जिसका स्वरूप है उसे प्रहलाद कहते हैं। अब आइए आपको होली में रंग खेलने का भी आध्यात्मिक रहस्य बताता चलूं। रंग का मतलब नीला, हरा, पीला रंग नहीं, परमेश्वर के प्रति अपना जो अनुराग है उसे रंग कहा जाता है। इसीलिए तो श्री रंगनाथ का दर्शन करने जाते हैं हम लोग। तो वहां भी यही मतलब है कि हम भगवान के रंग में रंगे, जो हमारी समग्र भावनाओं को ग्रहण करें, उसी को रंगनाथ कहते हैं। इसलिए रंग खेलने का मतलब है कि उस समय परमेश्वर के प्रति अब हम हृदय के सभी भावों को परमेश्वर के भावों में लीन कर देते हैं।
वह परमेश्वर कैसा है? वह परमेश्वर हमारी सभी कामनाओं को नष्ट करने में समर्थ है। वही गोविंद है, अर्थात गोविंद का अर्थ इंद्रियों का स्वामी है, उत्तम पुरुष है। वही हमारे अंदर आत्म स्वरूप से विद्यमान है। इसी प्रकार अपनी इंद्रियों को संयत अर्थात नियंत्रित करके सारे व्यवहार हमें करने हैं। यह नहीं कि बेवकूफों की तरह से एक दूसरे से होली खेल ली और हम समझे कि हम गोलोक चले गए, कृष्ण के पास वृंदावन चले गए। मनुष्य इस प्रकार अपनी इंद्रियों को संयत करके संसार के सब व्यवहारों को करते हुए परमेश्वर के रूप को पहचानता रहता है। जहां कहीं भी कुछ भी व्यवहार दिखता है, जानता है कि इसके पीछे भगवान नारायण ही क्रिया कर रहे हैं। इसीलिए तो मीरा ने कहा, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। You are listening to the only non-commercial Vedic religion webcast. आप सुन रहे हैं वैदिक धर्म का एकमात्र विज्ञापन रहित प्रसारण। धन्यवाद। तो बस आज इतना ही। Once again, happy Holi and Holi मुबारक। आशा है आज होली खेलते हुए इस पर्वोत्सव का आध्यात्मिक अर्थ भी समझने का प्रयास करेंगे और प्रभु के रंग में रंग जाने का प्रयास भी। तो आज्ञा दें, गॉड विलिंग वी विल मीट अगेन इन भजनावली। गुड बाय एंड मे गॉड ब्लेस। रंगीली होरी उत छोरा उत छोरी, होली में कोई गोरी रहना चाहे गोरी, पकड़ो रे पकड़ो रे पकड़ो। हमरी चुनर खोरी काहे रंग में बोरी, देख रे हंसी छोरी करते हो पर चोरी, निकलो रे निकलो रे निकलो। रंग डारन को अंग तेरो भायो जोगनिया, रंग डारन को अंग तेरो भायो जोगनिया। नहीं राधे को कन्हैया ने बता के, नहीं राधे को कन्हैया ने बता के अम्बे नवायो जोगनिया। रंग डारन को अंग तेरो भायो जोगनिया, रंग